नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चांदनी। आज की बड़ी खबर। 16 अक्टूबर को नवरात्रि के दूसरे दिन दिल्ली के झंडेवालन मंदिर में सुबह सुबह आरती की गई। नवरात्रि 10 दिवसीय भारतीय त्योहार है जो पूरे देश में व्यापक रूप से मनाया जाता है और इस साल 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी उपमंडल के नक्सलबाड़ी बाजार में 16 अक्टूबर को आग लग गई है। मौके पर दमकल की 6 गाड़ियां मौजूद थी और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभिनेता आयुष्मान खुराना गुजरात के जमनगर में नवरात्रि समारोह में शामिल हुए। उन्होंने जश्न के तौर पर स्लम एरिया में गरबा किया है। नवरात्रि 10 दिवसीय त्योहार है जो पूरे भारत में व्यापक रूप से मनाया जाता है और 24 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिशन से राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी के मुताबिक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि इजराइल हमास संघर्ष की इस गाड़ी में फिलिस्तीनियों की सहायता देना एक सकारात्मक बात है। उन्होंने कहा, मिस्र जिस सम्मेलन का आगे बढ़ा रहा है उसके संदर्भ में हमें लगता है कि इस प्रकार के पहले अच्छे विचार है। कुछ भी जो व्यवहारिक तरीकों से देख सकता है कि हम फिलिस्तीन को सहायता प्राप्त करने में कैसे मदद कर सकते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है, जो यह सुनिश्चित करने के तरीकों का विचार कर सकता है कि यह संघर्ष न फैले, जो भविष्य पर भी ध्यान दे सकता है। मुझे लगता है कि यह एक सकारात्मक बात है। We think these kinds of initiatives are good ideas. Anything that can look in practical ways at how we can help get assistance to
the Palestinians who need it, that can look at ways to ensure that this conflict doesn't spread, that can look to the future as well, I think is a positive thing. There's a vision that we very strongly espouse that has countries in the region normalizing their relations. That's a vision that does nothing to advance aspirations for Palestinians, that does nothing to help create better futures for people in the region. Some of the things we need to do moving forward, including practical ideas on getting assistance to Palestinians in Gaza who are in need, but also good and important conversations about the future and where we hope ultimately together we can bring this in a much more positive way. In terms of the conference that Egypt is putting forward, look, we think these kinds of initiatives are good ideas. Anything that can look in practical ways at how we can help get assistance to the Palestinians who need it, that can look at ways to ensure that this conflict doesn't spread, that can look to the future as well, I think is a positive thing. And what's very clear is this: there are two very different visions for the future and what the Middle East can and should be. There's a vision that we very strongly espouse that has countries in the region normalizing their relations, integrating, working together in common purpose. And that's a vision of death, of destruction, of nihilism, of terrorism. That's a vision that does nothing to advance aspirations for Palestinians, that does nothing to help create better futures for people in the region, and does everything to bring total darkness to everyone that it's able to affect. So I think the paths are clear, the visions are clear, and I have no doubt what path people, the overwhelming majority of people in the region, will choose and will prefer if given the opportunity. So our responsibility, all of us who believe in that first path, and that's everyone I talk to, our responsibility is to make it real, to bring it to life, to make it a clear affirmative choice. And that's what we're determined to do. We have to get through this crisis first, and we're working to do that. But we also have to get back in a very clear, practical way to that vision, to making it real. If we do that, everyone in this region will be in a much better place, and so will the rest of the world. तेलंगाना में चुनावी बिगुल बजे ही राज्य की सियासत गर्मा हुई है। पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके बीआरएस प्रमुख केसीआर ने आज 51 उम्मीदवारों को बी फॉर्म दिया है। इसी पृष्ठभूमि में बीजेपी की वरिष्ठ नेता विजय शांति ने एक्स प्लेटफॉर्म की आलोचना की। चुनाव आ गए है, बीआरएस अध्यक्ष केसीआर तेलंगाना के लोगों को कोई समर्थन नहीं दे रही है। यही समय है कि जब हमारे तेलंगाना वासियों को राजनीति से परे पिछले 9 वर्ष के दौरान इस केसीआर के झूठे वादों, धोखाधड़ी, हुक्म और शिकारी प्रवृत्तियों के और विश्वासघातों के बारे में लगातार सूचित करना चाहिए। तेलंगाना के बच्चों के सिर पर 5 लाख करोड़ का खर्च, 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे इस मुख्यमंत्री के परिवार ने लूटे हैं। इन पर दोबारा नहीं किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार और राजधानी के 7 संसदों की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। डीपीसीसी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने नेतृत्व में उत्तरी पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के बवाना में जवाब दो हिसाब दो अभियान के पहले चरण में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में हजारों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी संसदीय सीटों पर बीजेपी सांसदों का हराने और दिल्ली में नफरत की दुकान बंद कर मोहब्बत की दुकानों को प्रसारित करने की प्रतिज्ञा ली। बवाना की झंडा चौक पर ग्रामीण, झुग्गी झोपड़ी वाले, मजदूर, किसान, महिलाएं, नौजवान, सैकड़ों की संख्या में लोग बीजेपी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पार्टी के नेताओं ने स्थानीय सांसदों का गुमशुदा बताते हुए उनकी तलाश करने का कार्यक्रम चलने की भी शुरुआत की। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज यानी सोमवार को देवरिया के फतेहपुर गांव जाएंगे, जहां वो दोनों पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष आज दोपहर लगभग 12 बजे देवरिया पहुंचेंगे और प्रेमचंद यादव व सत्य प्रकाश दुबे दोनों परिवारों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना देंगे और मृतकों को श्रद्धांजलि देंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही आरोप प्रत्यारोप को जुबानी हमले का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधते हुए एक बड़ा बयान दिया है। जयवर्धन सिंह ने कहा कि उन्हें शिवराज सिंह चौहान पर दया आती है। इसकी वजह बताते हुए जयवर्धन सिंह बोले, मुझे शिवराज सिंह चौहान पर दया आती है।
जब उन्हीं की पार्टी उन पर विश्वास नहीं कर रही है, जब बीजेपी ही उन्हें सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, तो आप समझ सकते हैं जनता के बीच शिवराज सिंह चौहान क्या छवि होगी। राजस्थान विधानसभा चुनाव सिर पर ही है और 25 नवंबर को मतदान होना है। वर्तमान गहलोत सरकार का 14 जनवरी 2024 का कार्यालय समाप्त हो जाएगा। बीजेपी राजस्थान की सत्ता में लौटने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली गहलोत सरकार किए गए विकास कार्यों के आधार पर सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। प्रदेश की 41 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, जबकि कांग्रेस जल्द ही अपने कैंडिडेट लिस्ट सार्वजनिक कर सकती है। राज्य में मतदाताओं को रिझाने के लिए नेता लगातार प्रचार प्रसार करते हुए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच राजस्थान की गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह कचरियावास के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभद्र टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा में अगले साल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे से सभी राजनीतिक पार्टियां बड़े जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति तैयार करने में जुटी है। आम आदमी पार्टी ने भी हरियाणा पर अब अपना फोकस बढ़ा दिया। आम आदमी पार्टी अब तक करीब 4000 पदाधिकारियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, दूसरे दलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं को आप अपने साथ मिलाने की जुगात में लग गई है। आपके राष्ट्रीय संगठन महामंत्री डॉक्टर संदीप पाठक भी आज यानी 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। पाठक यहां परिवार जोड़ो अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने वाले हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले खबर में।